بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وقال ایضا کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ ورسولہ النبی الکریم۔ حاضرین گرامی اور عزیز برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالی نے انسانی اعتبار سے ایک سلسلے کو جاری کر رکھا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر چنانچہ اللہ تبارک و تعالی جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی جان ڈالتا ہے تو اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی فرشتے کو بھیج دیتا ہے کہ جاؤ حمل میں جاؤ، اور جو بچہ اس کے اندر ہے اس میں آپ جان ڈال رہے ہیں، اس کے اندر آپ روح ڈال رہے ہیں، اس کی پوری زندگی کا بایو ڈاٹا، کتنے دن جینے والا ہے، کب مرنے والا ہے، اپنی زندگی میں کیا کارنامے کرنے والا ہے، یہ تمام کا تمام بایو ڈاٹا لکھ کر کے آؤ۔ تو بتلانا میں چاہتا ہوں کہ جب بچہ حمل میں ہوتا ہے، پیٹ میں ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کے ذریعے کبھی اس کی تقدیر لکھ دیتا ہے کہ کب پیدا ہونے والا ہے اور کب وصال کرنے والا ہے۔ چنانچہ موت اور زندگی یہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اب جب بچہ پیدا ہو گیا، ہم دنیا کے اندر آ گئے، تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ احکام بھی نافذ کیے کہ اگر آپ بالغ ہو گئے اور بلاغت کو پہنچ گئے، بالغ ہونے سے لے کر مرنے تک آپ کو شریعت کے دائرے میں رہ کر یہ کام کرنے ہیں، ان چیزوں سے بچنا ہے اور یہ کام انجام دینے ہیں۔ اگر آپ نے ہمارے بتلائے ہوئے طریقے پر چلے، اگر آپ نے ہمارے احکام کو پورا کیا، تو ہم آپ کو اس کا بدل اور نعم البدل یعنی جنت کے روپ میں عطا فرمائیں گے۔ اور اگر آپ ہمارے بتلائے ہوئے طریقے کار کو انجام نہیں دیتے، آپ ہمارے احکام کو نافذ نہیں کرتے، تو ہم اس کا پورا بدلہ دیں گے آپ کو، وہ ہوگا جہنم کی شکل میں اور عذاب کی شکل میں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 1000 سال کی عمر پائی، حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال کی عمر پائی، اور جب موت کا فرشتہ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس میں آیا تو حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھا کہ ایک جھونپڑی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کو موت کے فرشتے نے آ کر کے کہا کہ چلیے آج آپ کا بلاوا آ چکا ہے، آپ چلو، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بلایا ہے، آپ تیار ہو جاؤ۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، اے ملک الموت، میں تو نہ جانے کب سے تیار ہوں، میں تو ہر دن ہر رات آپ کی طاق میں رہتا ہوں، آپ کی فراق میں رہتا ہوں کہ موت کا فرشتہ نہ جانے کب آ جائے اور کب میری روح قبض کرنے کے لیے آ جائے، آپ نے دیر کر دی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کو کہا ملک الموت نے کہ آپ نے 950 سال کی عمر پائی، کم از کم ایک ڈھنگ کا گھر ہی بنا لیا ہوتا، آپ چھپر کے نیچے پڑے ہوئے ہیں، اتنی لمبی عمر پانے کے بعد بھی آپ نے ایک گھر نہ بنایا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، میں نے گھر اس لیے نہیں بنایا کیونکہ جب بھی ہر دن ہوتا میں سوچتا کہ شاید آج موت کا فرشتہ آ جائے، آج موت کا فرشتہ آ جائے، موت کا فرشتہ آج آ جائے، اس لیے میں نے اس جد و جہد میں اور اس میں کہ کہیں میری موت نہ آ جائے، میں نے گھر نہیں بنایا۔ اس پر ملک الموت نے کہا کہ ہم نے تو سنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، ہمارے کانوں میں ایک بات پڑی ہے کہ ایک امت ایسی بھی آنے والی ہے جس کی عمر 100 سال سے لگ بھگ اوپر بھی نہیں ہوگی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے ایک دم جواب دیا کہ اگر میں ہوتا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر میں ہوتا اور مجھ کو پتہ چل جاتا کہ ہماری 100 سال کی عمر ہوگی تو میں تو ایک دم سجدے میں گر جاتا۔ 100 سال کی بھی کوئی عمر ہوتی ہے، میں تو ایک ہی سجدہ کرتا 100 سال میں تو سجدے میں سر گرا کر کے اپنے سر کو ہی نہ اٹھاتا، بھلا 100 سال کی عمر کیا ہے۔
तो हजरत मलकुल मौत ने कहा हजरत नूह अलैहिस्सलाम से कि एक उम्मत आने वाली है कि जिसकी उम्र 100 साल भी नहीं होगी और वो बड़े बड़े मकानात, बड़े बड़े बागात और ये तमाम काम अंजाम देंगी। बहरकैफ मौत एक हकीकी शय है, एक बरहक शय है। अब मैं बतलाना ये चाह रहा था आप लोगों को कि मौत अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में है और जिंदगी भी अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में है। अब जब हम दुनिया के अंदर आ गए, हमको अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाया। अब ये जो बीच का मरहला है, इसको किस सांचे में ढालना है, हमको क्या क्या काम अंजाम देने हैं। अब आया हमारे ऊपर जब शरीयत लागू हो गई, हम उस शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है ये या नहीं, ये किसके हाथ में है? ये हमारे खुद के हाथ में है। इसीलिए अल्लाह तबारक और शरीयत के अहकाम भी जब नाफिज हो गए कि बालिग होने से लेकर आप मरने तक आप अगर इस काबिल हैं, आपके ऊपर अगर ज़कात फर्ज हो गई तो आप ज़कात भी देंगे, आपके ऊपर हज फर्ज हो गया तो आप हज भी करेंगे, आपके ऊपर बालिग होने के बाद नमाज भी फर्ज हो गई तो आप नमाज भी पढ़ेंगे। ये किसके हाथ में है? ये हमारे हाथ में है। अब हमको ये देखना है कि अब हमारी ये जो जिंदगी है, अब ये जो हमारी जिंदगी है, हमको किस मरहले में गुजारनी है और किस सांचे में ढालना है। अब आया हमको अल्लाह तबारक व तआला को राजी करना है या उसको नाराज करना है। अभी मैंने खुतबे में आयत पढ़ी थी, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमको पैदा किया वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए पैदा किया ताकि हम अल्लाह की खुशनुदी और उसकी इबादत कर लें और अल्लाह की खुशनुदी को हासिल कर लें, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत कर लें और उसकी खुशनुदी हासिल कर लें। जब हम अल्लाह तबारक व तआला की इबादत भी करें और अल्लाह तबारक व तआला को हम खुश भी करें, फिर अपनी तमाम जरूरियात हम अल्लाह तबारक व तआला के सामने भी रखें, तो जरूर अल्लाह तबारक व तआला हमारी जरूरियात भी पूरी करेगा। ऐसा नहीं है कि हम अल्लाह तबारक व तआला से अपनी गुहार लगाए और अपनी मांग मांगे और अल्लाह तबारक व तआला पूरी ना करे। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों से बेजा मोहब्बत करता है। एक माँ अपने बच्चे से कितनी मोहब्बत करती है, उसकी हर जरूरत को पूरा करती है, उसकी हर जरूरत को पूरा करती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशबीह दी है कि मेरा अल्लाह अपने बंदे से उसकी माँ से भी 70 गुना ज्यादा मोहब्बत करता है। अगर हम अल्लाह तबारक व तआला के सामने अपनी जरूरत को रखेंगे तो जरूर पूरी करेगा। तो मैं बतला रहा था कि ये जिंदगी की जो प्लानिंग है, इसको तो हमको बनाना होगा। अगर जब हम एक मकान बगैर प्लानिंग के, बगैर मशवरे के, बगैर सोचे समझे नहीं बना सकते। मिसाल के तौर से अगर हम कोई मकान बनाते हैं, उसमें हमने ना तो किससे कोई मशवरा लिया, ना हमने कुछ ना ढंग से सोचा, मकान बन के तैयार हो गया, फिर हम बाद में सोचें या बाद में पछताएं कि यहाँ तो वॉशरूम बनना था, यहाँ रसोई घर बनना था, यहाँ पर किचन बनना था, यहाँ बैठक बननी थी। अब पछतावे से क्या हो रहा है? इसी तरीके से अब ये जो जिंदगी है, ये भी एक प्लानिंग जिंदगी का एक हिस्सा है। इसको भी हमको देखना है कि हमें किस सांचे में डालना है। अब आया हम उसको अल्लाह की इबादत करके सही सांचे में डालें या उसको नाराज करके एक गलत रास्ते पर ले जाएं। हम अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करके, अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी हासिल करके फिर उसके सामने अपनी जरूरत को पूरी रखें तो हमारी जरूरत जरूर पूरी होगी। मैं आपको एक मिसाल दूं। एक अल्लाह वाले थे, जा रहे थे, रास्ते में एक जंगल में कुछ जाना हुआ, गुजर हुआ, तो उनको रास्ते में प्यास लगी। उनको प्यास की शिद्दत हुई, उनको पानी पीने की कोई जगह मुयस्सर ना हुई। वो प्यास की शिद्दत, गर्मी में प्यास की शिद्दत, सोच रहे हैं कि मुझको किस तरीके से पानी मिल जाए। चुनाचे रास्ते में चले जा रहे हैं। रास्ते में उनको एक कुआं नजर आया। जब कुछ फासला तय किया तो उनको एक कुआं नजर आया, तो दौड़ करके उस कुएं के पास पहुंचे। उन्होंने सोचा कि कुआं है, इससे जरूर में मुझको पानी मिलेगा, मैं पानी पी लूंगा। चुनाचे जब वो कुएं पर पहुंचे, उस कुएं पर पहुंच करके देखा कि पानी तो है लेकिन पानी नीचे है। अब मैं इससे पानी भी पीना है, मुझको प्यास की शिद्दत है, मुझको अपनी प्यास भी बुझानी है, मैं पानी कैसे पीऊं? अब उन्होंने रस्सी का सहारा ढूंढा, कोई जरिया तो देखना था कि पानी कैसे ऊपर आए। तो उन्होंने सोचा कि मैं कोई रस्सी देख लेता हूं, उसमें बांध करके कुछ पानी ऊपर लेकर के आ जाऊंगा। कोई उनको रस्सी नजर ना आई, कोई बीच में कोई था भी नहीं जो उनकी मदद कर पाता, कोई रस्सी नजर ना आई।
जब देखा कि प्यास तो बहुत है, मैं पानी पीऊं तो पीऊं कैसे पीऊं। चुनाचे उन्होंने देखा कि एक हिरन दौड़ता हुआ आ रहा है, एक हिरन दौड़ता हुआ आ रहा है। वो कुएं के पास आया और देखा, उसको भी प्यास लगी हुई थी। उसने देखा कुएं के नीचे झांक करके पानी नीचे है, मुझको भी पानी पीना है। तो उस हिरन ने अपनी गर्दन ऊपर को उठाई, अल्लाह तबारक व तआला से कहा, अल्लाह मुझको प्यास लगी हुई है, मुझको प्यास लगी हुई है, मेरी प्यास बुझा दे, या तो इस चश्मे को ऊपर कर दे, मेरी प्यास बुझा दे। चुनाचे उस हिरन का एक कहना था और वो पानी नीचे से ऊपर आ गया। उस हिरन ने भी पानी पिया, उस हिरन के तुफैल उन अल्लाह वालों ने भी पानी पिया। अब वो अल्लाह वाले हैरान हो गए कि हम तो एक बेहतरीन मखलूक है, यानी हम तो इंसान है, हम तो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत भी करते हैं, मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, मैं ये भी करता हूँ, ये भी करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने पानी को मेरे लिए तो ऊपर किया नहीं और इस हिरन के लिए पानी को ऊपर कर दिया, क्या बात है। तो आवाज आई, क्या अल्लाह के नेक बंदे, तुझको जब प्यास लगी थी तो रस्सी का सहारा ढूंढता रह गया, और जब इस हिरन को प्यास लगी इसने डायरेक्ट अल्लाह तबारक व तआला को पुकारा, इसलिए अल्लाह की रहमत जोश में और इसने पानी पी लिया। अगर हम अपनी जरूरत को अल्लाह तबारक व तआला के सामने रखें तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी जरूरत को पूरी न करे। जैसे एक माँ अपने बच्चे की जरूरत को पूरी करती है, ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला उससे भी कहीं ज्यादा अपने बंदे से मोहब्बत करता है और उसकी जरूरत को पूरी करता है। अगर हम मांगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमको जरूर दे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में एक मजमा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास में आया और आकर के कहने लगा, अल्लाह के नबी, हमारे यहाँ पर बरसात नहीं हो रही, हमारे यहाँ पर बरसात नहीं हो रही है, कहत साली बहुत ज्यादा पड़ी हुई है। आप अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि खुशहाली आए, बारिश बरसा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करो कि अल्लाह बारिश बरसा, कहत साली हम पर बर्दाश्त नहीं हो रही, हमसे झेली नहीं जा रही। चुनाचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि अल्लाह इन लोगों पर रहम कर और अपनी रहमत की बारिश अता फरमा। चुनाचे एकदम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दुआ करना था, एकदम जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम फरिश्ता जो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम एकदम हजरत मूसा के पास आ गए और आकर के कहने लगे कि जितना मजमा है ना, ये जितना बड़ा मजमा है, इसके अंदर एक नाफरमान बंदा है। ये अल्लाह तबारक, इसने आज तक कोई ऐसा काम ही नहीं किया जिससे कि अल्लाह तबारक व तआला खुश हो जाए, ये बहुत नाफरमान है। आप इस मजमे के बीच से उस बंदे को निकाल दो, हम बारिश बरसा देंगे। अब जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फरिश्ते ने आकर के कहा तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हुए और कहा, पूरे मजमे को मुखातब करके कहा, क्या मजमे वालों, ए लोगो, ए बस्ती वालों, तुम्हारे बीच में एक नाफरमान शख्स है जिसने अल्लाह तबारक व तआला की कभी इबादत ही नहीं की, जिसने आज तक अल्लाह तबारक व तआला को खुश ही नहीं किया, वो इस बस्ती से निकल जाए, उसके बाद बारिश पड़ जाएगी और वो खुद समझ जाएगा, जो इतना नाफरमान बंदा वो खुद समझ जाए। अब इतना कहना था, वो बंदा एकदम परेशान रंजीदा हुआ कि आज मेरा राज फाश हो गया, आज इन सब के सामने मेरी बेइज्जती हो जाएगी। अगर मैं इस मजमे से निकल करके चला, अगर मैं इस मजमे में से निकल करके चला तो मेरी पूरी बस्ती के सामने मैं जलील और रुसवा हो जाऊंगा। उसने ना तो हाथ उठाए अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगने के लिए, कि अगर वो हाथ उठाता तो वहीं पर उसका भी राज फाश होता था कि शायद ये शख्स है, उसको एकदम बाहर भगा देते, निकाल देते। उसने दिल ही दिल में अल्लाह तबारक व तआला से गुहार लगाई कि अल्लाह, उसने ना तो कोई नमाज पढ़ी ना कुछ किया, उसने यकीनन सिद्क दिल से, सच्चे दिल से अल्लाह तबारक व तआला से गुहार लगाई कि अल्लाह आज मुझको इस मजमे के सामने जलील न करना, तू जानता है मैं जानता हूं, आज तो मुझको इस मजमे के सामने जलील न करना, क्योंकि अगर मैं यहां से निकला तो मैं जलील और रुसवा हो जाऊंगा। बस ये दिल से उसकी आह निकलनी थी। अल्लाह तबारक व तआला ने फौरन बारिश बरसा दी, उसकी दुआ एकदम कबूल हो गई। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से कहा, अल्लाह अभी तो इस मजमे में से कोई भी आदमी बाहर नहीं निकला, अभी तो हजरत जिब्राइल मेरे पास में आए थे, कहा था कि इस मजमे के अंदर एक गुनाहगार शख्स है, लेकिन मैं देख रहा हूं इतनी गौर के साथ में इस मजमे से कोई बाहर नहीं निकला, तो फिर बारिश कैसे बरसाई। तो फिर दोबारा से हजरत जिब्राइल आ गए और आकर के कहा कि जिस बंदे की वजह से, जिस गुनाहगार बंदे की वजह से हमने बारिश को रोका था, आज उसी गुनाहगार बंदे की वजह से बारिश को हमने बरसा दिया है। तो ये है अल्लाह तबारक व तआला के सामने गिड़गिड़ाने का मकसद।
اللہ तबारक व तआला से अपनी चाहत और अपना मकसद रखने का मकसद। तो हम दुनिया के अंदर आए हैं, मैंने भी खुतबे में आयत पढ़ी थी, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, मरना तो हर शय को है, हर नफ्स को है, हर जान, हर किसी को मौत आनी है। अब यह है कि हम इस तरीके से इस दुनिया से जाएं ताकि दो लोग हमको हमारे जाने के बाद अच्छाई से याद करें, ना कि बुराई से। ऐसे बन करके जाएं कि लोग कहें कि हाँ शायद ये आदमी था, उसके अंदर ये अच्छाई थी, उसके अंदर ये अच्छाई थी। हम मुसलमान होने के नाम पर धब्बा बन करके न जाएं, हम ऐसे होकर के न जाएं कि दुनिया हमको जलील, दुनिया हमको हमारे कारनामों से या बुरे कारनामों से हमको याद करे। हम ऐसे बन करके जाएं कि दुनिया हमको याद करे कि हाँ कि वो शख्स वो था, ये शख्स वो था। क्योंकि हमको कल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जाकर के मुंह दिखलाना है कि जिसने हमारे लिए ताइफ में पत्थर खाए, जो हमारे लिए ताइफ में खून से बिल्कुल लहू लुहान हो गया, हम उसको भी, हमारा सामने उससे भी होना है कि जिसने कहा था अल्लाह मैं खुद मेरी उम्मत का हिसाब लूंगा। तो उस पर अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि मोहम्मद मैं आपको तकलीफ नहीं पहुंचा सकता, मैं आपके दिल को गमगीन नहीं कर सकता, क्योंकि अगर आप अपनी उम्मत का हिसाब लेंगे और आप देखेंगे ना अपनी उम्मत के कारनामों को, अपनी उम्मत के गुनाहों को देखोगे, अपनी उम्मत के गुनाहगार को देखोगे कि आपकी उम्मत के लोगों ने कितने बड़े बड़े गुनाह किए और कैसे कैसे गुनाह किए, तो आपका दिल रंजीदा हो जाएगा। इसलिए मैं आपको हिसाब का हक नहीं देता, मैं खुद हिसाब लूंगा। तो हम क्या मुंह दिखलाएंगे? तो मैं कहता हूं कि मरने से पहले ही मरने की तैयारी करें, दुआ करें कि अल्लाह पाक हम सबको कहने और सुनने ज्यादा अमल की तौफीक दे।